या बस ठीक है, बस ठीक है. Julie ben de. Dönem. Being as a secretary, it's an honor to welcome all the distinguished guests and participants for today's orientation and training program on schemes and campaigns released by National Legal Services Authority. Please accept my heartiest Jule and Salam. Ms. Falza Sangmo, Principal District and Session Judge, also the Chairman, District Legal Services Authority, Kargil. Shri O.P. Thakur, Retired District Judge, who has joined us virtually. Shri Kacho Imtiaz, Additional Deputy Commissioner, Kargil. Advocate Kacho Manzoor Ali Khan, Panel Lawyer. Advocate Ghulam Murtaza, Panel Lawyer. Advocate Zarina Bano, Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel, and Advocate Nisar Hussain, Assistant Legal Aid Defense Counsel. Ms. Samina Khatun, District Social Welfare Officer and also District Child Protection Officer. Dr. Niaz Ali, Chairman Child Welfare Committee, Kargil. We are also joined by representatives of the Police Department, Mr. Anayat, Deputy Superintendent of Police, Headquarters, and Child Welfare Police Officer, Juvenile Unit, Kargil. From the Health Department, we have Dr. Rabia Bano, District Immunization Officer. We also have District Program Officer, ICDS, Kargil. We also have the heads of the child care institutions, private and government both, like Bal Ashram, Sweet Home Kargil, Javadia Project Care Minji, Ladakh Yatim Trust Lankarse, Al Zahra Orphanage, Gurbathang. I welcome you all for today's orientation and training program. I would also like to welcome my team of paralegal volunteers who have been doing wonderful work in the District Kargil. Lastly, I would like to welcome the media personnel, especially Mr. Manzoor and Ms. Hakima, who are always there for our events. I welcome you all for today's orientation and training program. Before we come to today's topic, I would like to address the gathering on the formation of Legal Services Authority at all levels, though be it at NALSA level, at national level, State Legal Service Authority at state level or UT level, District Legal Services Authority at district level, and finally Tehsil Legal Services Authority at Tehsil level. The Article 39A of the Constitution, a crucial and important article which is part of the directive principles of state policy, was introduced into the Constitution through the 42nd Amendment in the year 1976. Article 39A states, the state shall assure that the functionality of the legal structure fosters justice on the grounds of equal opportunity and shall, in particular, furnish free legal aid by appropriate regulation or schemes or in any other manner. Justice P.N. Bhagwati, then the Chief Justice, Supreme Court of India, said to establish a social framework in which the duty of dispensing justice is openly available and not out of reach of those who must use it to enforce their rights. The indigent and uneducated people should be able to contact the courts. Their indigence and ignorance must not be barrier to them receiving justice from the courts. The impoverished and ignorant who do not have access to courts should be eligible for legal help. Legal aid is available to anyone who is not a litigant. While the object of providing free legal aid, government had by resolution dated 26 September 1918 appointed the Committee for Implementing Legal Aid Schemes under the chairman of Justice P.N. Bhagwati to monitor and implement legal aid programs on uniform basis in the states and union territories. Then in the year 1987, the Legal Services Authority Act came into being. With this legislation coming into force, the legal services institutions have grown with each passing year and has been doing wonderful work each year. Today, the District Legal Services Authority has the finest and senior most advocates on its panel, providing free legal aid to the needful. Hundreds of cases are being settled in the Lok Adalats. Lakhs of amounts are being settled in each Lok Adalat. Scores of cases are settled through mediation,
And all these are possible with the help of this great legislation. Thakur, retired district and session judge, who is virtually present with us, and he's one of the main personnel for implementing these two schemes. That is NALSA Child Friendly Legal Service for Children schemes, and NALSA Legal Service Person with mental ill and Person with Intellectual Disability Scheme 2024. So sir will always will be guiding all of us. And Shri Kacho Imtiaz, Additional Deputy Commissioner Kargil, Advocate Kacho Manzoor Ali Khan, panel lawyer, Advocate Ghulam Murtaza, panel lawyer, Advocate Zarina Bano, Deputy Chief Legal and Defence Counsel, Advocate Nisar Hussain, Assistant Legal and Defence Counsel, Madam Samina Khatun, District Social Welfare Officer, Dr. Nayas Ali, Chairman, Child Welfare Committee Kargil, and bar members, all the Mr. N.I. DYSP Headquarter and Child Welfare Police Officer, Juvenile Unit Kargil, Mr. Tanvir, Executive Magistrate, and all the officials, because I will not take all the name, all the officials who are present here, and all the panel lawyers, DALSA staff, Mr. Chimed Yurgel, Learned Secretary DALSA, subject, and all the paralegal volunteers who are present here and who are present virtually. Good morning, Jule, and Assalamu alaikum to all of you. So I think you all must be, because our learned secretary has given detailed brief of what program all this are. So I think before going into detail of the program, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी, क्योंकि जब हम एक प्रोग्राम के स्कीम के इम्प्लीमेंट करने के लिए जब हम जमा होते हैं, हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें ये स्कीम जो है नालसा के अकॉर्डिंग है. When we talk about NALSA, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर आते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. उसका जो चेयरमैन पैटर्निंग चीफ होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनका सेकंड जो है सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं. So through that only we are getting all this scheme for implementing on the ground level, and so that it could reach to each and everyone on the doorstep. So justice should be provided to all, and no one should be left without getting justice. तो इस हिसाब से इसका एक होता है. फिर दूसरा उसके बाद आते हैं हमारा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी. तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अभी हमारा लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी है. तो लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी, जैसे ही हम लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी का बात करते हैं, उसमें हमारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो होते हैं वो हमारा पैटर्निंग चीफ होते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जेएंड के लीगल सर्विस अथॉरिटी का होते हैं. फिर उसके बाद सेकंड सीनियर मोस्ट जो है हमारे लद्दाख के लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते. तो इस तरह जो है इसका हेयरकी चलते हैं. उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट पे आते, जैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पे आते. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पे आएंगे तो वहाँ पे चेयरमैन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है चेयरमैन आते. उसके बाद उसमें सेक्रेटरी आते हैं, हमारा सीनियर सब जज होते हैं, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे चिमित साहब है. फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट पुलिस, एसपी साहब, और जो है इसी तरह बार प्रेसिडेंट, ये सब मेंबर होते हैं. उसके बाद हमारा पैनल लॉयर्स होते हैं काफी सारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में. सो वी शुड ऑल कीप वन थिंग इन माइंड, दैट वी ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली connected with district legal service authority. When it comes to district legal service authority, we all have to work in collaboration with all as per the direction of national legal service authority or as per the direction of state legal service authority, wherever we get the direction. तो इसका मेन मकसद है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ग्राउंड टोटल, मतलब हर एक उस पे डोर स्टेप्स पे जो है जस्टिस मिलना चाहिए. We have to work together in collaboration with each other. So in this, all the NGOs or our administrative side and district legal service authority all has to work collectively for implementing whatever schemes or whatever any legal remedies are available for the people. So we will be working together, and all the religious organization also. तो ले में जो है हमने काफी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जो है लद्दाख लीगल सर्विस के
डायरेक्शन पे जो है काफ़ी प्रोग्राम किया, तो यहाँ पे भी हम फ्यूचर में करेंगे ताकि सब जो है कंबाइनली करें, क्योंकि पहले लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि लीगली जो है हमें वो मिलना जो है बहुत मुश्किल होता है। इस बार तो हमारा मेन मकसद जो है अभी लेटेस्ट जो हमें 2 जो प्रोग्राम कैंपेन जो चलाना है, वो कैंपेन साथी और कैंपेन जो है वो सेकेंड कैंपेन जो है आशा का जो है हमें रिसेंटली डायरेक्शन मिला है। तो बाकी जो 2 स्कीम है वो तो हमारा वैसे भी स्कीम रहेगा, जिसमें जो है नालसा चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विस फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2024 और नालसा लीगल सर्विस टू पर्सन विद मेंटल इलनेस एंड पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें हमारे साथ गाइडेंस जो है आपको बार बार जो है जब भी ज़रूरत हो, हमारा जैसे जज साहब अभी वर्चुअली जो है हमारा रिटायर्ड सेशन जज साहब ओपी ठाकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो उनके गाइडेंस में जो है आप लोगों को ये 2 स्कीम जो है इम्प्लीमेंट होगा। एफर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, पुलिस, जब तक ये सारा कलेक्टिव एफर्टली ये एक साथ नहीं आएगा तो हमें ये इस मकसद में हमें कामयाबी नहीं मिलेगा। So we'll start with today's technical session. The first session for the today's training program is on rights of children, and the resource person for today's program we have Dr. Niyaz Ali, जो कि चेयरमैन है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के। डॉक्टर नियाज अली। I would like to extend my warm greetings to all the esteemed guests and participants. Julie, Assalamu alaikum, to our respected Principal District and Session Judge, retired District Judge O.P. Thakur, Additional District Magistrate Imtiaz, all the chairmen of TLCs, Deputy SP Headquarters, senior lawyers and advocates, all the district officers, ladies and gentlemen, a warm greeting of the day to all one and all. It is an honor to be part of this session. I will look forward for a fruitful session. They are the future of our own society, own community. तो उनके लिए जो भी राइट्स यूनाइटेड नेशंस ने फ्रेम की है, या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या हमारे जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट्स बनाए हैं, वो बच्चों के लिए हैं, ताकि जो बच्चे जो है अभी जो आजकल के जो बच्चे हैं वो हमारे फ्यूचर है, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर ओन कंट्री। तो उनके लिए कुछ राइट्स फ्रेम किए गए हैं। कलेक्टिवली हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सारे लोगों की उसमें लीगल से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके सारे जितने भी पूरा कम्युनिटी है डिपार्टमेंट वाइज, सबकी हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके राइट्स को, बच्चों के राइट्स को फुलफिल करें, उनकी राइट्स प्रोटेक्ट करें। बहुत सारी चीज़ों में कभी कभार अब्यूज़ ज़्यादा होते हैं आजकल के। थोड़ा सा ये है कि स्कूलों में थोड़े से टीचर्स थोड़े से टफ होते जा रहे हैं और कुछ जगह पे अब्यूज़ भी होते हैं। तो उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने या हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे राइट्स लाए हैं जिनके थ्रू उनके राइट्स प्रोटेक्ट की जा सके, जिसमें मैं यूनाइटेड नेशन से शुरू करूंगा। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, उन्होंने 4 कुछ फंडामेंटल्स राइट्स बनाई रखी है, जिसमें एजुकेशन पे बात करती है, हेल्थ केयर भी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग दैट इफेक्ट द चिल्ड्रन। इसी तरह से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ राइट्स, वेरियस कानून, वेरियस लॉज लाए हुए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, उसमें राइट्स जैसे कि बताए गए कि प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल्टी, ये प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को जो फिजिकल या इमोशनल या साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा होती है, अब्यूज होती है, उससे बचाने के लिए इसमें एक प्रोटेक्शन दे रखी है बच्चों को। और प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट होती है किसी हमारे लद्दाख में तो इतना हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ आप जाएं, मुंबई, दिल्ली में जाएं, तो वहाँ पे फोर्स की जाती है बेगिंग के लिए,
लोगों को चौराहों पे रखे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। तो वहाँ से प्रोटेक्ट के लिए ये जे एक्ट है, और ये राइट्स भी दी जाती है कि उन बच्चों को, सारे बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन और ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें ताकि वो फ्यूचर में डेवलप कर सके, इस सिंसियर कर सके, ताकि जितने भी जो बच्चे हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, रेस्ट ऑफ द पीपल के साथ कलेक्टिवली जुड़ के इस नेशन को आगे बढ़ा सके। आपने इसमें सर असगर साहब भी भूल गए, एडवोकेट असगर साहब, साथ ही साथ जो आज मेरा जो स्कीम्स है नालसा से, जो चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विस फॉर चिल्ड्रन स्कीम्स 2024 में जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो 1987 में बना, जो कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड टू लीगल सर्विस इन व्हीकल सेक्शंस, जो हमारी लोअर तबकों को, खासकर हमारी जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को फ्री एंड कॉम्पिटेंस लीगल सर्विस प्रोवाइड करना है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है। उसी तरह स्कीम्स में भी कि हमारी जो चाइल्ड्स है, जो इनमेच्योर ऑन द ग्राउंड ऑफ इनमेच्योर फिजिकली एंड मेंटली, जो इनमेच्योर जो चाइल्ड्स है, ये जो कमजोर चाइल्ड्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड केयर करने के लिए इस स्कीम्स को लाया गया है। उसी तरह जो हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 में बहुत से सेक्शन है, जो कैटेगरी है या कौन इंटाइटल होते हैं, उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 12C, जो खासकर बच्चों की राइट्स है। बच्चों को कहीं किसी बच्चे को, कोई बच्चा बच्चा मीन्स जो 18 से बिलो जो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, हमारी जो बच्चों को इस सेक्शन 12C नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 में प्रोवाइड करता है कि आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं आपकी केस को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि फ्री लीगल एड इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसी के पास, क्योंकि वो गरीब हो या जिनके पास पैसा नहीं है तो केस नहीं लड़ सकते, क्योंकि पैनल लॉयर्स या वकीलों को फीस देना पड़ता है, फीस नहीं दे पाते तो एक्सेस टू जस्टिस नहीं मिलता है, इक्वल जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास जो आमिर के पास जो पैसा है वो अपना वकील चुन के अपनी केस को कोर्ट तक पहुंचाते हैं, लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं होता है तो क्या करता है, केस करते नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है वकील को देने के लिए। इसीलिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो 1987 में बना, उसमें हर जो हमारी हिंदुस्तान की कोई भी सिटीजन हो लेकिन इंटाइटल होना चाहिए, उसमें भी इंटाइटल कैटेगरी है। अगर आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो इंटाइटल फाइल करता है तो आपको फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक शायद थोड़ा सा मैं कुछ कोट ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो नालसा स्कीम्स है पर्टिकुलरली फॉर ऑल द मार्जिनलाइज्ड कमिटीज, हम सबको पता है, तो रिलेटेड टू दैट कि तोड़ना है हर पिंजरा, कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिले ज़मीं बर नहीं कि आसमान अभी बाकी है, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी ही सही, भीतर कहीं तूफान अभी बाकी है। So, with the permission of the chair, I would like to start my topic. And I'm extremely glad and thankful to District Legal Service Authority, Shri Chimit sir, for giving me an opportunity to share my thoughts with you all on this important topic. NALSA. NALSA stands for National Legal Services Authority, as we all know that, which is a statutory body constituted under the Legal Service Authority Act. It's the Act itself, 1987 in India.
NALSA is responsible for providing free and competent legal services to the weakest section of society, including scheduled caste, scheduled tribes, women, children, persons with disabilities, victims of natural disaster, poor and marginalized communities. So, NALSA operates through a network of, as we all know, that State Legal Service Authority and the District Legal Service Authority, and then comes the Tehsil Legal Service Authority. And let's dive in the topic which our Honorable Secretary gave me today, that is NALSA Legal Services to the person with mental illness and person with intellectual disabilities scheme 2024, which includes, this scheme includes 7 chapters. This scheme is a legal framework for providing free legal services to person with mental illness and person with intellectual disabilities. देखिए, mental illness and intellectual disabilities इन दोनों वर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. Mental illness हम उस पर्सन को बोल सकते हैं कि कोई स्ट्रेस, सोशल ट्रॉमा की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से कोई सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उस टाइम पे हम उस पर्सन का कंडीशन हम बोल सकते हैं मेंटल इलनेस हम बोल सकते हैं. एंड द अदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जैसे परमानेंट जो एक डिसेबिलिटीज होता है, लाइक मेंटल रिटार्डनेस होता है, ऑटिज्म होता है, ये सारा इस पोर्शन में कवर करता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. This scheme is intended to be responsive to the specific legal and social needs of this target group. NALSA Act 1987. Act 1987 में जो सेक्शन 12D क्या बोल रहा है कि पर्सन विथ मेंटल इलनेस के बारे में बात करता है, सेक्शन 12D. एंड सेक्शन 12G, नालसा एक्ट 1987 का 12G बात करता है पर्सन विथ मेंटल इलनेस इंस्टीट्यूशंस. हमें अगर कोई कहीं भी हमें अगर ऐसा कोई पर्सन हमें दिखे, वी हैव टू रिपोर्ट. हमें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जहाँ पे जिसका जुरिसडिक्शन होगा वहां पे रिपोर्ट करना है. अगर आप कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसे पर्सन आप देख रहे हैं बीइंग सिविलियन, हम नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं. और जो हमारा ये है RPW एक्ट 2016, उसमें भी लीगल एड को लेके डिफाइन किया हुआ है. सेक्शन 7 सब सेक्शन 4C, इसमें भी ये, और इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट लीगल एड, इसमें भी लीगल एड को लेके डिफाइन किया गया है. दूसरा हमारे पास और एक एक्ट है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जिसका सेक्शन 27 सब सेक्शन 1 फिर से बात करता है लीगल एड को लेके. सेकंड जो सीनियर मोस्ट जज था जस्टिस संजीव खन्ना, जो उन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा है बहुत अच्छी तरह से. और पर्पस ऑफ जो मेन स्कीम का जो था, जो हमारे सोसाइटी के सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन्स होते हैं, मेंटल इलनेस जो होते हैं और जो डिसेबिलिटी, उनको हम इग्नोर करते हैं. सबसे ज्यादा सफरर होते हैं, जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि उनको सबसे ज्यादा सफरर और सबसे ज्यादा कानून की जरूरत होती है. क्योंकि मेंटल इलनेस तो इसको एक अलग से कहते हैं कि इसमें इंसान की उसमें हम नहीं सोचते हैं कि अलग हो गया बिल्कुल मेंटल रिटायर्ड होने के बाद उसको छोड़ देते हैं. और इस तरह जो डिसेबल पर्सन होते हैं उसको भी छोड़ देते हैं. तो उसके लिए एक स्कीम बनाना बहुत जरूरी था, जो 2024 में नलसा ने अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी, कोई भी स्कीम जो हमारे चेयरमैन मैडम ने बोला कि कोई भी जो है वो एक एक्ट के तहत जो है ना, वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 की बेसिस पे ये बना है, जिसमें सेक्शन 12DG डिफाइन करता है जितने भी डिसेबिलिटी और मेंटली रिटार्डेड जो पर्सन है उनको भी एक लीगल फ्रेमवर्क जो लीगल एड मिलना चाहिए. उनको सोसाइटी में एक ऐसा दर्जा मिलना चाहिए ताकि वो भी सोसाइटी के हर लेवल में कोई भी प्रॉब्लम हो, लीगल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो उसको लोगों के साथ बराबर फाइट कर सके. तो उसके लिए ये स्कीम बनाया गया. और उसके लिए ऑलरेडी कानून तो ऑलरेडी बना है, मेंटल हेल्थ के जो 2000 जो एक रिवोल्यूशनरी कानून था, जिसमें उनको स्पेशल राइट दिया गया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट. तो जितने भी स्कीम के बारे में मेरे कुलीग जो डिफेंस एड काउंसिल मैम जरीना ने कवर किए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको जो है एड करना चाहता हूँ इसमें.
ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपके, क्योंकि वह काफी टाइम हो चुका। क्योंकि जो पर्पस है, हमने भी देखा अपनी सोसाइटी में बहुत से मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, उनका हुकूक नहीं मिलता। हम जमीन का हिस्सा भी नहीं देते उनको। 5 भाई होते हैं, इसमें से 2 मेंटली रिटायर्ड होते हैं, 3 लोग उसका जमीन खाए जाते हैं, उसको निकाल के बाहर रख देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको कोई कानूनी चारागोई की जरूरत पड़ा, कहीं कानूनी उसको अपने जमीन की प्रोटेक्शन है, उसको कोई राइट या कुछ चाहिए, तो उसके लिए ये स्कीम बनाई। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो हमने कहा जो नलसा, इसके बाद जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसमें सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी भी है। इसके बाद सेकंड स्टेप जो है स्टेट में जो है हमारे यहाँ लद्दाख में लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इसके बाद हमारा हाई कोर्ट लीगल एड कमेटी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इसके बाद हर जो तहसील लेवल पे तहसील लीगल कमेटी है, उसका एक चेयरमैन, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, सेक्रेटरी जो हमारे यहाँ चिमन देवगिल साहब है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, उनको एक स्पेशल एक डायरेक्शन दिया है कि आप इस स्कीम को चलाने के लिए आप एक अलग अलग यूनिट बनाया जाए। एक एक्सपर्ट्स पैनल लॉयर्स का एक यूनिट बनाया जाए जिसको एलसम बोलता है, एलसम, और मनु न्याय है, उसका एक क्लिनिक अब हर जगह खोला जाए, जिसमें ऐसे लोगों के लिए जो डिसेबल है, मेंटल इलनेस है, उनको न्याय मिल सके। हमें कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से एनलाइटन किया, और ये जो टॉपिक्स इस प्रोग्राम, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में लिए गए बहुत बर्निंग इश्यूज हैं, और ज़रूरी था कि हम आवाम तक पहले तो खुद सीखें और आवाम तक ये बातें पहुंचाएं। पुलिस की भी शमूलियत है, NGOs भी हैं, नियाज़ साहब का अपना इंस्टीट्यूशन है, वकील हजरात बैठे हैं, और मैडम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस की सदारत में जो प्रोग्राम हो रहा है, इससे अवेयरनेस तो बहुत बढ़ेगा ही। लीगल टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो सारे इनके बारे में हमें कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि आज का दौर है मैम सोशल मीडिया का, और अवेयरनेस हर जगह जनरेट हो रहा है, और कोई न कोई छोटा सा भी इशू होता है वो जागरूक होकर हमारे सामने आ जाता है। लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं अब। बस जब कोई अच्छे खासे बहुत उम्दा और क्रिटिकल टॉपिक्स को जब छेड़ा, तो हमें भी याद आया कि हमें भी थोड़ी सी रोशनी इसमें भी डालनी चाहिए। मेंटल हेल्थ पे, ड्रग अब्यूज़ पे, चाइल्ड अब्यूज़ ज़्यादा, और ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह के केसेस अनफॉर्चुनेटली कारगिल में भी उभर के आ रहे हैं। पुलिस वाले हैं ही अलर्ट, डिस्ट्रिक्ट अलर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट पे है, और हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो बने हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, मैडम समीना जिनको मॉनिटर करती रहती हैं बीच में, और नियाज़ साहब का जो इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद दी है, इसलिए कि रिहेबिलिटेशन की बात आ जाती है बीच में। और अदरवाइज जब ये इंस्टीट्यूशंस नहीं थे तब पता नहीं किस तरह पुलिस वालों को हैंडल करना पड़ता था ऐसे केसेस को। इसमें फिर रिहेबिलिटेशन और फिर काउंसलिंग वगैरह की बातें आती हैं। पेरेंट्स, किसी बच्चे का माइनर का कोई केस आता है तो फिर पेरेंट्स को भी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, नहीं तो जैसे नियाज़ साहब ने बखूबी बताया कि एक स्टिग्मा और एक टैबू जुड़ा हुआ है इन चीज़ों के साथ। अगर कोई सेक्शुअल अब्यूज़ का केस हो, मोलेस्टेशन का हो, तब पेरेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि सोसाइटी में हमारे क्या इज्जत रहेगी अगर हमने ये बात उछाली। अगर, और पुलिस की बात तो बहुत दूर है, मोहल्ले में भी किसी को या किसी रिश्तेदार को भी पता नहीं चलने देते कि कैसा कोई अब्यूज़ का कोई इंस्टेंस आया है। और जितना ये लोग इस इशू को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके बच्चे की जहनी हालत और ख़राब होती जाती है, सुसाइड के कगार पे भी पहुंच जाते हैं। तो फिर ऐसे जब नौबत आती है तो हम एज एन एडमिनिस्ट्रेशन हमारा फेलियर ही उसको दर्शाएगी। हम एज रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, रिस्पॉन्सिबल जैसे कहते हैं ज़िम्मेवार शहरी, हम फिर उस मामले में फेल हो जाते हैं। तो शुक्र है कि सिर्फ कहीं ना कहीं बात शुरू हुई है मैम, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़रिए से ये प्रोग्राम जो मुनक़िद हुए है, इसके ज़रिए से पब्लिक तक एक बात पहुँचेगी कि आपको निडर होके अपने कोई भी ऐसे कोई कंप्लेंट हो तो हमारे सामने लाएं, ताकि एक तो चर्चा भी ना हो, उनका नाम कहीं ना है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, स्मूथ तरीके से इस केस को हैंडल किया जाए। 2-3 अच्छी बातें ये भी हैं कि वन स्टॉप सेंटर भी खुला हुआ है, ICDS प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल करता है, और एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट, एक इदारा बन गया हुआ है, और स्पेशल प्रोटेक्शन सेल्स भी हैं
तो और जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आ जाते हैं और कुछ फेक केसेस भी आए हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये सब फिल्टर करके जेन्युइन केसेस को हैंडल करने में ICDS का वन स्टॉप सेंटर बहुत ही उम्दा काम कर रही है और प्रोटेक्शन सेल भी अच्छा काम कर रही है, एज यू नो इन द पास्ट, इन द रिसेंट पास्ट। आज के जितने भी स्पीकर्स ने जो भी अच्छी बातें बताई वो हम अपने दिमाग में रख के उसको पॉलिसी मैटर्स में डिस्कस करते हुए भी हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंस और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो तो हम हैं ही पहले से कमिटेड, आगे भी हम और सपोर्ट देते जाएंगे। माउंटेनस टास्क होता है, बड़ा बड़ा चैलेंज, जब खुदकशी के कगार पे पहुंच जाता है इंसान तो आप समझ सकते हैं कि उसके मेंटल रोल बहुत ही उम्दा होता है और हम सपोर्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा रहेगा। ऑफ लेट मैम रिसेंटली कई सालों में, 2-3 सालों में मेंटल हेल्थ का जो काउंसलिंग का सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अच्छा रहा है। हमारे नोडल ऑफिसर्स डॉक्टर फातिमा निसा और बाकी इनके जो स्टाफ है उन्होंने एक अच्छा काम करके दिखाया है। इनके पास अच्छे केसेस आते हैं, हम पेशेंट्स नहीं कहेंगे, इनके पास मैनेजमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए अच्छे लोग आते हैं, ये खुद भी घरों में जाके भी काउंसलिंग देते हैं। और माशाल्लाह कुछ केसेस भी आए हैं, शायद स्कूल्स में ड्रग अब्यूज के इंस्टेंसेस हुए हैं। स्टूडेंट्स भी अगर रिहैबिलिटेट होकर वापस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, घर में भी आके सेट हो जाएं, लेकिन कोशिश उनकी नज़र भी रखनी ज़रूरी है क्योंकि वो वापस फिर उस साइकिल में फिर फंस सकता है। उनके दोस्त तो वही रहते हैं, फ्रेंड सर्कल्स वही रहते हैं। तो टारगेट हमारी यही होनी चाहिए कि उनको जेल में न डालें, उनको सजा के तौर पे उनको बेइज्जत होने की नौबत न आने दें, लेकिन उनके दोस्तों को भी रिहैबिलिटेट करें या काउंसलिंग दें ताकि वो फिर अपनी पढ़ाई जारी रखें और कहीं समाज से कट होकर आगे कोई और बड़ा फैसला लेने पे वो आमादा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए शमीद साहब, और कोशिश यही रहेगी कि हमारा सपोर्ट आगे भी बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कमेटी में एज हमने एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन के लिए रखा हुआ है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने एग्री किया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस की कारगिल, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस की कारगिल, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, PhDs and other person participating in this unit meeting. मेरा आज का ये कहना है कि इस यूनिट की जिम्मेदारी है कि चिल्ड्रन आर नेशनल है। ये बच्चे जो एक नेशन की वेल्थ है वो अपने सही रास्ते से जब भटक जाते हैं तो उस सूरत में इनको इस स्कीम के तहत ये एजुकेशन, केयर, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हर चीज का स्कीम के अंदर जो है स्कीम के अंदर प्रोविजन रखे गए। अब सवाल ये पैदा होता है, ये प्रोविजन जो रखे गए हैं ये स्कीम के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में स्कीम लेकर सिविल में इम्प्लीमेंट कैसे हो। अगर जो भी आज हमने मीटिंग की, जो भी डिस्कशन हुई, जो भी इशू राइट, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रन की है, उसके बाद ये बातें पूरी डिस्ट्रिक्ट कारगिल में कैसे लोगों तक पहुंचाए। मेरा मानना है कि अगर ये प्रोग्राम हम हायर सेकेंडरी में रखें, स्कूलों में रखें, कॉलेज में रखें, अगर कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई रिलीजियस प्लेसेस हो, जैसे हम अपने इस यूनिट का जो ऑर्डर निकला उस ऑर्डर के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के HOD जैसे DC को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप इस स्कीम के तहत अपने स्पॉन्सरेट को डायरेक्शन इशू करें कि जो ये स्कीम आई है इसको लेटर एंड सीक्रेट इंप्लीमेंट करें। उसी तरह से SSP जो है करके उसको भी रिक्वेस्ट करेंगे किसी सेंटर की है सब जो ये ऑर्डर जाए उसमें ये हम रिक्वेस्ट हमने इस यूनिट में नॉमिनेट तो कर दिए, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट नहीं की हमने कि सर ये मेंबर है हमारे PNP और पैनल है जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपकी तरफ से इनके साथ तालमेल होना जरूरी है। इसके अलावा जो भी ये स्कीम है इसकी हार्ड कॉपी एडवोकेट पैनल लवर्स को भी और PNPs को भी होना जरूरी है। उसके लिए उनको ये बात समझ नहीं आएगी कि अगर बच्चा
उनके सामने पेश हुआ तो वो उसके साथ कैसे डील करेंगे, वो उसको जैसे अपना बच्चा है उसका डील करेंगे, वो उसको समझेंगे ये बेकसूर है जब तक इसको कोई कॉम्पिटेंट आदमी देने की है किसने ये काम किया है नहीं किया। ये तमाम जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कॉर्पोरेशन की बहुत जरूरत है और अवेयरनेस कैंप इतनी जरूरत है कि स्कीम है लोगों को बता दें, लेकिन ये स्कीम जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए कैंप्स लगाना बहुत जरूरी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना। स्कीम्स हैं डिफरेंट जो उनको हर तरह से कॉपरेट करना है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज ट्रेनिंग के दिन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉपरेशन है और जबकि आज हमारा लिमिटेड था कि हमने पिलर लॉयर्स और बीएमवीज को इस स्कीम के तहत उनको दिखाना है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर हम पूरा कोशिश करेंगे उनको इमीडिएटली कंप्लाई करने के लिए सर, और जो आपके सजेशंस हैं उसको हम बिल्कुल एकदम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे सर विद इन दिस वीक सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन सर, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे से वर्चुअली जुड़े सर। नेक्स्ट ईयर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कारगिल तशरीफ रखें और इस स्कीम को, ये दोनों स्कीम सर देखिए कि कारगिल में कितने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक you so much for participating. Yang speaking mo saya di topik pecah dengan this kalau cerita sekarang semua isu semua. शुक्रिया हकीमा दोनों गति का yang मीडिया पर्सन गति का मंजूर बहुत बहुत शुक्रिया। दी स्कीम पो जरना एक मतलब चुक समायों खंचीन गति नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज दरे दी स्कीम पो जो सीन की ngатang डिस्ट्रिक्ट लेवल का की दी रिलेटेड दरे जरा जित 4 पॉइंट्स रेत उधर रिलेटेड ngata दिका ngati डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट इवन ngati ओवरऑल इंडिया हिंदुस्तान yang हर डिस्ट्रिक्ट का ngata दी रिलेटेड ngata दी क्लिनिक पुचौर गोशिन जिसमें क्या होगा कि प्रॉपर ngati जो जहाँ पे पर्टिकुलरली नालसा स्टिल बाद नालसा वहाँ पे काम करता है कि पर्टिकुलरली फॉर द मार्जिनलाइज कमिटीज बिंदु अंगतेज और वीकर सेक्शन उनके लिए काम करता है। अब ऐसा लग रहा है कि ये एक्ट बन गया लेकिन तब भी ngati वीकर सेक्शन सब पे ये प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो रहा है ज़रे। अब ngati सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर ये प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये क्लिनिक्स ये बना दो आप, ताकि और वो क्लिनिक्स कौन हेड करेगा ngati डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ngati दरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के छिमित सरयोत जो कि सब जज लेवल का पोस्ट होता है। तो वो उसके हेडेड और उसके गाइडेंस के अंडर ये पूरा चलेगा कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा डिस्ट्रिक्ट में, इसमें क्या क्या टीम होगा, कौन कौन होगा, किस किस टॉपिक पे ये काम करेगा ज़रे वो सारा हमें नालसा हमें ऊपर से ये हमें बताता है ज़रे। अब पर्टिकुलरली फॉर जैसे कि ngata दरे दी particularly चार during the orientation training program on NALSA schemes and campaigns बना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला था जिसमें ngati particularly हमारे ngati सेशन जज डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मैडम पल्जा सांगमो जो कि ngati चीन चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के हमारे क्या है चेयरमैन भी है, वो आज प्रोग्राम में आए हैं। ngatu ngati सेक्रेटरी पिन हमारे ऑनरेबल हमारे एडीसी थे, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर मैडम समीना खातून थे, ngati मैडम डेलन आंगमो जेएमआईसी ngati जज मैडम सांको वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, ngati इनायतुल्लाह सर डीवाईएसपी जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पुलिस ऑफिसर भी थे, ngati का वेरियस इंस्टीट्यूशन आयोत पिन जिनका हेड यहाँ पे आए हुए थे जबनागत उस इंस्टीट्यूशन जैसे कि ngati अज़हरा गर्ल्स होम यूथ सेक्पेट ने जास्कर वाले ने वर्चुअली ज्वाइन किया था, यंग ngati स्वीट होम यूथ पिन लंकर से वाला था, दिखे ngati अलग अलग इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, उनका केयर किया
जाता है और दूसरे इंस्टीट्यूशन सगायुत पिन, और उनके साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स थे वो सब यहाँ पे आज प्रेजेंट है। तो इनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जोशिद, अभी तो ये इनिशियल स्टेज है हमारा, इनको हमें बताना था कि इसमें हमें क्या क्या कवर अप करना है। दिया जैसे कि नालसा में फर्स्ट वाला जो स्कीम है वो है चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज एंड चिल्ड्रन स्कीम 2024 ज़रिए, जिसमें हमें चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट छिंद और मिंदू अल्ताचा उससे रिलेटेड काम करेगा। सेकंड नालसा का जो स्कीम है लीगल सर्विसेज टू पर्सन विद मेंटल हेल्थ इलनेस एंड पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्कीम 2024 ज़रिए। देखिए अब मार्जिनलाइज ज़बाना आता, पहले भी हमने अभी डिस्कस किया कि वीकर सेक्शन ज़रिए, वीकर सेक्शन में खून ज़रिए डिसेबल पर्सन ज़रिए ओदोनी प्रॉपर केयर, वही तो मार्जिनलाइज है। अगर खूब मार्जिनलाइज में न कर तो फिर ये एक्ट बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बराबर पॉलिसी स्कीम्स हक हुकूक देने के लिए तभी ये स्कीम नालसा ने प्रोवाइड किया है कि इनको मेन स्ट्रीम में कैसे भी हो आपको लाना है ज़रिए। दूसरा इसमें और एक ये है कैंपेन साथी ज़रिए, साथी से बना सर्वे फॉर आधार एंड एसेस टू ट्रैकिंग एंड होलिस्टिक इंक्लूजन से बना। इसमें क्या होगा, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन है केयर जो प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चे हैं, घर कोई आधार कार्ड मलदन मयोजना, हेल्थ कार्ड मलदन मयोजना का, तो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट्स कि उनको जल्दी ही इनका जो उनका कागज़ है ना, सर्टिफिकेट है ना, दोन मलदन मयोद खनून गामा वो सारा बनने के लिए वो एक कैंपेन चलेगा।